Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is C. Yadav, and today we are going to proceed our chapter of civics, electoral politics. And our today's first topic is voter list. I think you definitely heard the name of voter list. It is a list in which all voters of our country are listed, and following this list, the people participate in casting their votes for choosing their representatives. First of all, in voter list, what is the age of voters are fixed by the constitution. Actually, the age of voters in our country is nowadays it is 18 years. That means कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पार कर चुका है, 18 साल या उससे ऊपर का है, उसे मत देने का अधिकार है और उसका नाम भारतीय सरकार के द्वारा वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में ऐड कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है बाय प्रोसेसिंग. बट इनिशियली द एज ऑफ वोटर्स was not 18 years, but initially it was 21 years old. That means the universal adult franchise which is followed in our country, and right now it is 18 years. Initially it was not 18 years, it was 21 years. Means जब प्रारंभ में संविधान बना उस समय हमारे देश में मतदाताओं की जो उम्र निश्चित की गई वह 18 साल नहीं बल्कि 21 साल थी. उस समय वह व्यक्ति जो 21 साल की उम्र पूरा या पार कर चुका होता था उसे ही मत देने का अधिकार होता था. लेकिन बट बाय 62 अमेंडमेंट 1988 द एज ऑफ वोटर्स was reduced. It was reduced from 21 to 18 years. अर्थात 62वें संवैधानिक संशोधन 1988 के द्वारा भारत में मतदाताओं की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, और जो वर्तमान समय में वही है 18 वर्ष. Now we should discuss how voter list is prepared. मतदाता सूची कैसे बनाया जाता है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मतदाता की सूची तैयार कैसे की जाती है. How it is prepared. The voter list is prepared by the government, the organs of government which are working in the country. They visit door to door, write the name of the people, they ask the age of the people, and finally it is prepared as voter list. Now the teachers of primary school are engaged in preparing the voter list. जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक होते हैं उनसे हमारे देश में वोटर लिस्ट तैयार कराया जाता है. एक शब्द आप जरूर सुने होंगे, BLO. तो BLO नियुक्त किया जाता है जो प्रायः
प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, हेडमास्टर्स होते हैं और उनके द्वारा, चूँकि द टीचर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल एंड हेडमास्टर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल दे नो very well the people of the locality where they teach in the school. They visit the villages, ask some details from the people and write down it and send it to district or sub-district offices where the list is prepared. BLO, its full form is Booth Level Officer. Booth Level Officer initially prepared the voter list and it is finalized by the district officer. Now the next topic is nomination of candidates. Nomination of candidates, how the candidates of the several political parties do their nomination for the assembly elections and parliament election like Lok Sabha. The candidates took nomination and then they fight the election. अर्थात जो राजनीतिक दलों के जो मेंबर्स होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, सबसे पहले उनको अपना नॉमिनेशन कराना होता है, नामांकन कराना होता है और उस नॉमिनेशन के बाद जिसको हम अपने लोकेलिटी में पर्चा दाखिला के नाम से जानते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो सबसे पहले अपना पर्चा दाखिला करते हैं, मीन्स नॉमिनेशन कराते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही उसके हेड होते हैं और वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स आते हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं और उसके बाद उनका नॉमिनेशन होता है और तब वह चुनाव के मैदान में जाते हैं, अपना इलेक्शन कैंपेन करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं और तब वोटिंग होती है। देन आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द वोट्स इज डन and then after the announcement of result done by the officers. Now we should see some requirements, some details which is provided by the candidates to the officers. So first, serious criminals cases pending against the candidate. अर्थात जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन कराने जाते हैं उनको यह डिटेल्स देना पड़ता है कि उनके खिलाफ़ कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा चल रहा है, कितने मुकदमे ऐसे हैं जो उनके खिलाफ़ आपराधिक पृष्ठभूमि के मुकदमे हैं और वह पेंडिंग हैं, अभी मुकदमों का डिसीजन नहीं आया है। इसका डिटेल्स कैंडिडेट्स को देना पड़ता है। नेक्स्ट इज डिटेल्स of the assets and liabilities of candidate and his or her family. अर्थात जो कैंडिडेट सिलेक्शन फाइट करते हैं अपना नॉमिनेशन में, उनको उनके पास कौन से एसेट्स हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं और उनकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं या उनके परिवार की जिम्मेदारियां क्या हैं, ये इसका ब्यौरा देना पड़ता है। एंड फाइनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स का जो प्रत्याशी होता है उसका शैक्षिक योग्यता क्या है, वह किस क्लास तक पढ़ाई किया है, उसके पास कौन सी डिग्रीज़ हैं, इसका भी ब्यौरा चुनाव आयोग के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने कैंडिडेट्स को प्रस्तुत करना होता है। नाउ टुडे वी हैव डिस्कस्ड वोटर लिस्ट एंड नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स and the full details which is provided by the candidates to the election commission officers who are appointed in the district level where the nomination is done
And after these two topics, in next video, we will discuss on the election campaign, how the election campaign is done by the candidates who fight the election. Today, it's end. Thank you.